friends, let us start a new chapter, that is बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. प्यार से लोग उसे BRS कहते. A very interesting chapter. If you have a knowledge of banking, then this becomes very easy. As you know, dear friends, most of the traders open the account with the bank. Most of the traders open the account with the bank. And for businessmen, it is advisable to open current account. If the transactions are limited, then saving account. Okay, and you know, some of the businessmen is having spare money, then FD account, fixed deposit, on which businessman gets interest. Trader records the transactions related to bank in cash book, 3-columnar, 2-columnar cash book, having a column of bank and bank book. Trader normally records the transaction in 3-columnar cash book. Cash book is prepared by trader, it is a MCQ. And banker records the transaction in ledger, and the summary of the transactions are recorded in a small book. प्यार से लोग उसे कहते हैं passbook. It is a passbook. Passbook is prepared by bank and it is given to the trader on a fixed interval. Nowadays it's very easy, mobile banking, etc. So businessman records the transaction in cash book. Bank records the transaction in passbook. The balance as per cash book and the balance as per passbook must be equal. But sometimes the difference is arise between the balance of cash book and passbook. कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है बैलेंस में. Businessman compares his cash book with the passbook. At that time, the balance as per cash book and passbook must be equal. वो दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों बैलेंस इक्वल होनी चाहिए. लेकिन कभी कभी क्या होता है, द डिफरेंस इज अराइज, दोनों के बीच में डिफरेंस आता है. टू नो द रीजन, क्या रीजन है डिफरेंस का, एंड टू नो द करेक्ट बैलेंस, businessman prepares a statement and that is known as BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. चलो हम छोटी छोटी बातें देखते हैं BRS की. BRS इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट. ये भी आपको MCQ ब्लैंक में पूछा जाता है. BRS इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट. BRS is prepared by trader at the end of a specific time or a date. BRS is prepared by the trader at the end of a specific time or a date, on a particular date. Generally, अभी तो मोबाइल वगैरह आ गया है बैंकिंग, लेकिन पहले के ज़माने में नॉर्मली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ businessman compares his cash book with the passbook. VRS means a statement showing the causes, reason of the difference in the balance of a bank as per cash book and a balance as per passbook for a particular time or on a particular date. Particular time or date में businessman compare करता है. What is the balance as per cash book and passbook? They compare. Normally balance as per cash book and passbook is equal. But sometime कभी कभी the differences arise. तो क्या difference है, क्यों, कौन सा reason है difference का? Yes, to know this reason and to know the correct balance, businessman prepares a statement. And उसे लोग कहते हैं BRS. What is passbook now? Passbook means the copy of the trader's account in the books of bank. हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया है with the bank, these are recorded in the ledger of the bank. इंडिविजुअल ट्रेडर का अकाउंट होता है और इनकी जो समरी है, कॉपी है, वो एक छोटी सी बुक में लिखा जाता है and that is given to the trader by the bank on a fixed interval. उसे लोग कहते हैं पासबुक. पासबुक में फ्रेंड्स लिखा होता है डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट एंड द बैलेंस. डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट एंड द बैलेंस. जो भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं
बैंक ट्रेडर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. When you deposit money, trader's account is credited. And when the trader withdraws money, जब उनकी बैलेंस कम हो जाती है, then banker debits the trader's account. ये सेम ही रूल है पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर जैसा. ओके, नाउ द पॉइंट इज व्हेन बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, आपकी बैंक बैलेंस कब इंक्रीज होती है एंड कब आपकी बैंक बैलेंस डिक्रीज होती है. चलो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन है. सो व्हेन योर बैंक बैलेंस इंक्रीजेस एंड व्हेन योर बैंक बैलेंस डिक्रीजेस. चलो मुझे बताओ फ्रेंड्स, आपकी बैंक बैलेंस कब इंक्रीज होती है? When you deposit money into bank, if you deposit cash, okay, तो आपकी बैंक बैलेंस इंक्रीज होती है. At that time, trader debits the bank account and banker credits trader's account. हम मतलब बिजनेसमैन बैंक का जब डेबिट करते हैं, एट द सेम टाइम बैंक बिजनेसमैन का अकाउंट क्रेडिट करता है. सो इट इज अ सिंपल रूल. व्हेन यू डिपॉजिट मनी, बैंक इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट. और बैंक ऑन द पार्ट ऑफ बैंक, ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ बैंक, व्हेन मनी डिपॉजिटेड बाय ट्रेडर, सपोज आई एम अ बैंकर, तो मैं क्या सोचता हूं? मनी कम्स इन, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड ट्रेडर इज अ गिवर. So when trader deposits money, trader debits bank account and banker credits trader's account. Keep in your mind, your friends, जब हम डेबिट करते तो बैंक वाले लोग क्या करते? क्रेडिट करते. वेरी गुड. Okay, second, when you deposit checks, so nowadays most of the customer even they prefer to give checks. So when we receive checks and we deposit into bank, then your bank balance increases. Sometime interest or dividend collected by bank, या तो आपकी FD है, उन पर इंटरेस्ट मिलता है and it is credited to your account, then आपकी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाती है. If you are having shares of some company and you have given instruction to the bank कि जो भी डिविडेंड है वो आप कलेक्ट करो, so as per your instruction, dividend is collected by bank and credited into your account. जब आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है बैंक, then your bank balance increases. Sometimes customers या तो debtors they deposit direct amount into your account. आपको पैसा लेना है किसी से, वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट या तो ट्रांसफर करवा दे, then your bank balance increases. So many reasons are there. These are the main. Now when your bank balance decreases, when your bank balance decreases, chalo tell me, when your bank balance decrease, माइनस हो जाती है. चलो मुझे बताओ. या वेरी गुड. फर्स्ट रीजन, कैश विड्रॉन. सेकेंड, जैसे हमने चेक डिपॉजिट किया, समटाइम वी इश्यू द चेक. Okay, see, when you withdraw cash, checks issued, when you issue the checks, then your bank balance decreases. Sometime banker charge some charges, then your bank balance decreases. Bank pays some expenses on behalf of you. Suppose you have given instruction to the bank to pay your mobile bill, to pay shop rent, club bill, insurance premium, telephone bill, electric bill, then your bank balance decreases. Okay, so these are the main reasons. So many other reasons are there, but these are just for your knowledge. So friends, what is the moral of the story? Businessman opens the account with the bank. Businessman does the transaction with the bank and records in the cash book. Cash book is prepared by trader. Bank records the transaction in the ledger, and the summary of the transactions are given to the trader in a small book
उसे लोग कहते हैं पासबुक. Businessman compares his cash book with the passbook on a particular date, specific date, and by comparing this, some differences arise. So normally there should be the equal balance. Suppose if I say my bank balance is 2 lakhs as per cash book, as per passbook, if it is 2 lakhs, then no problem. But sometimes the differences arise. At that time, to know the reason why the differences arise, why this. तो क्यों डिफरेंस आता है? टू नो दिस रीजन एंड टू नो द बैलेंस, करेक्ट बैलेंस, बिजनेसमैन प्रिपेयर्स व्हाट? स्टेटमेंट. और ये स्टेटमेंट को क्या कहते हैं लोग? BRS. ओके, सो BRS is prepared by the trader on a particular date or a particular time when the differences arise between the balance of cash book and passbook. तो हम इसमें से 3 MCQ ले सकते हैं. BRS is dash statement. BRS is not dash account. BRS is prepared by dash trader. When BRS is prepared? When the differences arise between the balance of cash book and passbook. Normally it is prepared at the end of the month. Normally. Okay. When bank balance increase and when bank balance decrease, that you know. When you deposit money into the bank, when you deposit check, interest or dividend collected by bank, customers have directly deposited amount into your bank account. Okay, then your amount directly deposited by customers or debtors. And when bank balance decreases, when cash withdrawn, checks issued, expenses paid by bank on behalf of us, bank charges, etc. Okay friends, अगर आपकी बैलेंस नहीं है, OD है, तो थोड़ा ये रीजन चेंज हो जाएगा. Okay. So that I'll explain afterwards. Okay. So clear friends, this is the moral of the story of BRS. Okay, write down. Friends, after the discussion when bank balance increase and decrease, now I'm going to explain the reason. देखो BRS हम क्यों बनाते हैं? Why we are preparing BRS? When the differences arise between the balance of cash book and passbook. कैश बुक और पासबुक की दोनों बैलेंस इक्वल होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, ये जो भी रीजन मैं बताने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रीजन, दिस ऑल आर टेम्पररी, दिस ऑल आर टेम्पररी. चलो देखते हैं क्यों डिफरेंस आते हैं. व्हाई द डिफरेंसेस अराइज बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक. चलो मान लेते हैं कि ऑन 31st May 20 एज पर कैश बुक, सपोज ये मेरी स्टार्टिंग की बैलेंस है, स्टार्टिंग की बैलेंस 15, मेरी बैलेंस है 20,000 एंड एज पर पासबुक इट इज सपोज 20,000. मान लो ये शुरू की बैलेंस सेम है, लेकिन एंड में डिफरेंस आता है. क्यों एंड में डिफरेंस आता है? एट द एंड ऑफ द मंथ. व्हाई? Reason number 1, checks deposited but not credited by the bank. See, if you deposit checks and these checks are credited by the bank, but आपको पता होना चाहिए friends, when you deposit a check, as soon as, no, immediately आप अपनी cash book increase करते हैं. Suppose I have deposited a check of 5,000, I increase my bank balance 5,000. Again, I deposited a check of 3,000. I increase my bank balance immediately. But if you deposit in the bank, कौन सी डेट पे आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, कब किया है? देखो अभी ये क्लियरिंग फास्ट हो गया है, तो पहले के जमाने में क्या था, इफ यू गिव ए चेक ऑफ राजकोट और बड़ौदा, तो ये क्लियरिंग हाउस में जाता था. तो क्लियरिंग हाउस की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है प्रोसेस. और अगर आपने सैटरडे संडे डिपॉजिट किया, लेट डिपॉजिट किया, पब्लिक हॉलीडेज आ गया बीच में, और आपने डिपॉजिट किया सपोज 29 मई और उसी दिन सैटरडे संडे ये या पब्लिक हॉलीडे, तो आपने तो बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दी.
यू हैव इंक्रीज योर बैंक बैलेंस। लेकिन ये चेक अगर क्रेडिट नहीं हुआ है, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है, तब तक आपकी बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं होगी। सो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, अगर आपका चेक थोड़ा लेट क्लियर होता है एंड ये मंथ खत्म हो जाता है और ऑन अ पर्टिकुलर डेट अगर आप कंपेयर करते हो, देन द डिफरेंसेस अराइज एंड व्हेन द चेक क्लियर्स, तो ऑटोमेटिक आपकी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अगर आपने किसी को चेक दिया है, वो चेक उन्होंने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, बट आप क्या करोगे, व्हेन यू गिव द चेक, व्हेन यू इश्यू द चेक, इमीडिएटली आप अपनी बैंक बैलेंस माइनस करोगे। आप लिखोगे पेमेंट साइड बाय एक्स बाय वाई बाय जेड, जिन लोगों को आपने चेक दिया उनका नाम लिखोगे कैश बुक में पेमेंट साइड, बट द पर्सन टू whom you have given the checks, they have not presented in the bank, या तो उन्होंने लेट प्रेजेंट किया। कभी आप किसी को चेक देते हो तो 10-12 दिन लगा देते हैं डिपॉजिट करने में, उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया उनके अकाउंट में, तब तक आपकी बैंक बैलेंस रिमेन सेम, कम नहीं होगी। बट आपने तो कम कर दी, लेस कर दी, तो ये भी रीजन है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि दिस ऑल आर द टेम्पररी रीजन। चलो एक और रीजन देखते, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक। कभी कभी क्या होता है, आपको किसी से पैसा लेना है, मान लो 10,000, एंड ये इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन योर बैंक अकाउंट। बैंक ने जब तक आपको इन्फॉर्म नहीं किया तब तक आपको पता नहीं चलेगा। देखो एक चीज बता दूं, अभी जो मॉडर्न टेक्निक है, अभी लेटेस्ट, ये चैप्टर थोड़ा पुराना है इसलिए आपको ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक चीज आप नोट करो फ्रेंड्स, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किसी ने आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, तब तक आप कैश बुक की बैलेंस इंक्रीज नहीं करोगे। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गई, कैश बैलेंस अनचेंज हो गई, अनचेंज है मतलब यू नॉट पास द एंट्री, सो देयर इज अ डिफरेंस। इंटरेस्ट, कमीशन, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक इन योर अकाउंट। ट्रेडर के अकाउंट में बैंक ने डेबिट किया बैंक चार्जेस, कमीशन, एंड देन बैंक इन्फॉर्म्स टू द ट्रेडर। जब तक ट्रेडर को पता नहीं चलता तब तक ये दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, बिकॉज बैंक हैज डेबिटेड, बैंक हैज डिक्रीज और बैलेंस। बैंक ने आपके अकाउंट में से माइनस कर दिया, आपको पता ही नहीं। Next reason, amount recovered by the bank and credited traders account but not recorded in the cash book. बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, डिविडेंड, शेयर डिविडेंड, आपका कोई शेयर है कंपनी का, बैंक हैज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन योर अकाउंट एंड देन बैंकर इन्फॉर्म्स टू यू। पहले जमाने में क्या था फ्रेंड्स, बाय पोस्ट बैंकर इन्फॉर्म्स, अभी मैसेज आ जाता है। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा मॉडर्न नहीं है, लेकिन ये नॉलेजेबल चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा लगेगा कि सर अब इमीडिएटली मैसेज आ जाएगा, लेकिन ये बात थोड़ी पुरानी है। सो बैंक इन्फॉर्म्स टू अस कि चलो आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक डिफरेंस आएगा। चेक्स रिसीव्ड, किसी से हमने, मान लो किसी ने हमें चेक दिया, वी हैव रिसीव्ड चेक एंड वी हैव रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में हमने एंट्री भी कर दी, बट नॉट डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट ही नहीं किया। चेक आपने रिसीव किया, मान लो 10,000 का मिस्टर ए से, आपने एंटर भी किया, आपके ड्रॉअर में रख दिया, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो भी कैश और बैंक में डिफरेंस आएगा बैलेंस में। एक और वाइस वर्सा, मतलब क्या हुआ कि आपने चेक मिला किसी से, यू डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यू डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डाल दिया, लेकिन आप भूल गए कैश बुक में लिखना, यू फॉरगॉट टू एंटर इन द कैश बुक, आप कैश बुक में लिखना ही भूल गए, तो कैश बुक में नो एंट्री है एंड यू डिपॉजिटेड इनटू बैंक। होता है कभी कभी मिस्टेक। सिमिलरली चेक्स इश्यूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आपने किसी को चेक दिया लेकिन आप कैश बुक में लिखना ही भूल गए, या तो आपने चेक किसी को देना था वो लिख लिया, वो दिया ही नहीं, तो भी डिफरेंस आएगा। सो फ्रेंड्स ऐसे कई रीजन है, दीज आर द मेन रीजंस विच आई एक्सप्लेन। एक और भी है, मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ बैंक, मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ ट्रेडर। कभी कभी क्या होता है
कि सपोज आप ट्रेडर हो, आपने चेक डिपॉजिट किया 2500 का, लेकिन बाय मिस्टेक आपने लिख दिया 5200, या तो आपने लिखा 250, अमाउंट मिस्टेक हो गई, या तो 3 कॉलमनर कैश बुक में आपने चेक रिसीव किया, यू टू राइट इन द बैंक कॉलम, एंटर इन द बैंक कॉलम, लेकिन आपने बाय मिस्टेक कैश या तो डिस्काउंट कॉलम में लिख लिया, तो भी डिफरेंस आएगा। कभी कभी बैंक की भी गलती हो जाती है, कोई रॉन्ग अकाउंट सिमिलर नाम जैसा है, या तो आपने करंट में डिपॉजिट किया, बैंक ने आपका सेविंग में क्रेडिट किया, कभी बाय मिस्टेक हो जाता है। कभी आपका बैंक का टोटल रिसीव और पेमेंट का डिफरेंस निकालते उसी टाइम आपका कोई मिस्टेक हो गई, सो टोटल आपका ओवरकास्ट हो गया या तो अंडरकास्ट हो गया, तो ये कहीं मिस्टेक हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द डिफरेंस इज अराइज। सो फ्रेंड्स, दिस आर द मेन रीजंस कि आपकी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है, व्हाई द डिफरेंस इज अराइज बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो फ्रेंड्स, दिस आर द मेन रीजन। छोटे छोटे और भी 2-4 रीजन होते। कभी कभी मान लो योर डिपॉजिटेड चेक एंड चेक बाउंस हो गया, तो बैंक ने अगर आपको इन्फॉर्म किया है लेकिन लेट इंफॉर्मेशन मिली, आपने तो बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दी, चेक आपने डिपॉजिट किया था वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो भी आपकी बैंक बैलेंस डिफरेंस आएगी। सो फ्रेंड्स, कम ऑन, फटाफट हम देख लेते हैं, चलो फटाफट। BRS इज अ स्टेटमेंट prepared by the trader on a particular date with the differences arise between the balance of cash book and passbook at that time to know the reason, क्यों डिफरेंस आता है, उनका हमें कॉजेस फाइंड करना है, एंड करेक्ट बैंक बैलेंस भी ढूंढनी है। सो फॉर दैट बिजनेसमैन prepares a statement. BRS is a statement prepared by the trader when the differences arise between the balance of cash book and passbook at that time। जो भी स्टेटमेंट बिजनेसमैन बनाते हैं उसे लोग कहते हैं BRS। इट इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो आपकी बैंक बैलेंस कब इंक्रीज होती है? व्हेन यू डिपॉजिट मनी, व्हेन यू डिपॉजिट चेक्स, व्हेन इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, व्हेन डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कस्टमर्स हैव डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। आपकी बैंक बैलेंस कब डिक्रीज होती है? डाउन। कैश विड्रॉन, चेक्स इश्यूड, एक्सपेंस पेड बाय द बैंक, बैंक चार्जेस, कमीशन, ऐसा कुछ डेबिट किया है बैंक ने, तो आपकी बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? रीजन। BRS क्यों बनाते हैं? रीजन। कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आता है, तो क्या क्या रीजन हो सकता है? देखो, ये एट ए ग्लांस में फिर से बताता हूं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, आपने चेक डिपॉजिट किया बट बैंक में क्लियर ही नहीं हुआ, क्रेडिट ही नहीं हुआ। Checks issued but not presented, you have given checks to your creditors but they are not deposited in their bank account, तो डिफरेंस आता है। डायरेक्टली कस्टमर कभी कभी आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, तो आपकी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाती है और आपको पता ही नहीं है। वैन जब पता चले तब आप रिकंसिल करोगे, या तो आप एडजस्ट करोगे, लिखोगे, बट तब तक आपका डिफरेंस रहेगा। और इंटरेस्ट, कमीशन, बैंक चार्जेस बैंक आपके अकाउंट में डेबिट करते, तो आपकी बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाती है। अमाउंट रिकवर्ड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड, बैंक आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट करते हैं रिकवर करके, शेयर, डिविडेंड, या तो इंटरेस्ट, या तो किसी से आपको रेंट लेना है तो रेंट भी बैंक कलेक्ट कर लेती है ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है एंड आपको पता ही नहीं, तो डिफरेंस आता है। ये शॉर्ट टर्म डिफरेंस है। चेक आपने रिसीव किया, आपने रिकॉर्ड भी किया, लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं किया, या तो आपने डिपॉजिट किया तो रिकॉर्ड नहीं किया। चेक आपने किसी को दिया, यू हैव इश्यूड अ चेक बट यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आपको लिखना है कैश बुक में बाय X बाय Y, जिसको चेक दिया है उनका नाम लिखना है, वो भूल गए। या तो आपने कभी कभी किसी को चेक दे दिया है, वो अमाउंट रॉन्ग कॉलम में डाल दी है आपने, मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ ट्रेडर, मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ बैंकर। जब आप चेक इश्यू करते हो तो आपको लिखना है बाय सो एंड सो बैंक कॉलम, लेकिन आपने लिख दिया कैश कॉलम में। कभी रॉन्ग अकाउंट हो जाता है, बैंक की गलती हो जाती है, ये सारा रीजन है। लेकिन ये सब रीजन जो है, दिस आर ऑल टेम्पररी रीजन। समझ गए फ्रेंड्स? ओके, सो प्लीज राइट डाउन।